Hello students, welcome to my channel. In this video, you will get complete solution of exercise questions of force and laws of motion. This is the ninth chapter in NCERT of class 9. This is the first question. An object experiences a net zero external unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide a reason. Means we have to give the reason in case of yes or in case of no. Okay. So here what we will write that yes, when external unbalanced force on an object is zero, the object can be traveling with a non-zero velocity. So what there the condition here asking that if yes, state the condition that must be placed. Okay, so what will be that? First one, just the object should be already in motion, मतलब वो object motion में होगा with uniform speed या वेलोसिटी कर सकते हैं ना स्ट्रेट लाइन. ठीक है. सेकेंड में कर सकते हैं देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड. ठीक है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए. एंड द वेलोसिटी ऑफ दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड ऑल्सो नो चेंज इन डायरेक्शन. मतलब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट चल रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है. थर्ड कंडीशन दैट रेजिस्टेंस जो होगा दैट शुड बी जीरो. फर्स्ट दैट इन एयर दैट मस्ट बी जीरो and between the object and the ground that must be 0. This is the solution of question number 1. Here the second question. When a carpet is beaten with a stick, the dust comes out of it. Explain. So here will be the answer. When we beat a carpet, so carpet when we beat with a stick, it comes in motion. The dust particles in carpet tends to remain at rest due to inertia of rest. We will mention like that. That's why that particles fall off or fall down. We can write like that. Here third question given, why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? मतलब किसी भी बस पे या कोई भी व्हीकल्स जो है, ठीक है, उसके ऊपर में अगर कोई लगेज हम लोग रखते हैं उसको क्यों एडवाइस किया जाता है कि आप उसको टाई कीजिए. वेरी सिंपल कि दैट व्हेन बस स्टार्ट सडनली तो क्या होगा दैट लोअर पार्ट ऑफ द लगेज जो छत पे रखा हुआ है दैट कम्स इन मोशन. ओके, बट द अपर पार्ट वांट्स टू रिमेन इन रेस्ट पोजिशन ड्यू टू दैट फॉल. सो हियर सी दैट लोअर पार्ट ऑफ द लगेज केप्ट ऑन द रूफ बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद द बस बिगिंस टू मूव फॉरवर्ड with the speed of the bus, but the upper part due to the inertia of rest tends to remain at the rest, hence fall backward. Okay, पीछे की ओर या that downward. Here it will be better that we have to write here downward. Okay, backward or here we can write downward, downwards. ये दोनों में से लिख सकते हैं. ठीक है. Similarly same thing happens when the moving bus चल रहा है स्टॉप सडनली तो लगेज क्या होता है फॉल डाउन हो जाता है ड्यू टू व्हाट इनर्शिया ऑफ मोशन. क्यों? क्योंकि वो मोशन में रहना चाहता है. ठीक है. एंड ब्रेक लग जाएगा तो वो नीचे की तरफ वो फॉल हो जाता है. ठीक है. सो इट इज एडवाइज टू टाई द एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ बस विथ अ रोप. ठीक है. इन क्वेश्चन नंबर 4 अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट. The ball slows to a stop because there are the 4 options given, so that the option number C will be the answer because there is a force on the ball opposing the motion. That force is the force of friction. So that option C is the correct answer. This one. See in this question number 5 a truck starts from rest, so we will write initial velocity 0, rolls down a constant acceleration, it travel at a distance, means that distance is given here 400 meter in 20 seconds. So distance is equal to 400 meter, time is 20 second. Find acceleration और क्या find करना है force. So we will write here and mass is given 7 ton. So here we will write here what 7 metric ton or 7 ton. Simply we can write 7 metric ton. That is equal to 7 into 1000, that is equal to 7000 kg. Okay, so first of all what we will do, we have to find acceleration. So there are the 3 laws of motion. V equals to u plus at, s equal to ut plus half at square, v square minus u square equal to 2s. तो तीनों में से देखें which one will be applicable. So here we will use
here we will write from second equation of motion. ठीक है, तो here we will write s equal to ut plus half at square. Here distance is given, so we will write here 400. Initial velocity is 0, time is given 20, plus 1 by 2 acceleration we have to find, time is here 20 square. Okay, so it will be 400 equal to 0 plus 1 by 2 into a into 400, it will cancel to 2. ठीक है, तो अब इधर आके क्या हो जाएगा, ये देखो 400 by 200 दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन बिकॉज दिस वन इज 0. ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर वी विल गेट a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वी मस्ट राइट द यूनिट ऑल्सो. ठीक है, हमेशा लिखना है. नाउ वी हैव टू फाइंड फोर्स. सो फोर्स इक्वल टू क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इज गिवन 7 मेट्रिक टन मीन्स 7000 and 2 it will be what, 1400, that is the 1000. Okay, 14,000 Newton or kg meter per second square, that is the Newton. Okay, this is the our solution. Now see question number 6. A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the foreign surface of a lake and comes to rest. After traveling a distance of 50 meter, what is the force of friction between the stone and the ice? एक स्टोन को लेक के ऊपर जो फॉरेन सरफेस जो जमा हुआ है, आइस जो है उसके ऊपर फेंका जा रहा है. ठीक है, सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इट इज गिवन मास. मास वी विल राइट m इक्वल टू 1 kg. ठीक है, हियर वेलोसिटी, सी हियर दैट द वेलोसिटी इज गिवन हियर, तो we will write initial velocity that 20 meter per second. Okay, comes to rest means वो rest में आ जा रहा है, means what, final velocity will be 0. After traveling a distance means s is given that 50 meter. Okay, so what is the force, आपको फोर्स फाइंड करना है. एज आई टोल्ड कि हम लोग के पास 3 इक्वेशन है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड वन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. ठीक है, तो वी विल सी कि फ्रॉम वेयर दैट वी विल फाइंड, बिकॉज वी वांट टू फाइंड हियर व्हाट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मीन्स फोर्स. एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन के लिए सेकेंड और थर्ड, बिकॉज हियर डिस्टेंस इज गिवन, सो फर्स्ट विल नॉट अप्लीकेबल. तो इन दोनों में देखना है कौन सा होगा. तो हियर सी, अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, देखो यहाँ पे s है, ठीक है, u ठीक है मालूम है, टाइम नहीं मालूम है, सो 2 अननोन क्वांटिटी हो गया, तो वी विल नॉट यूज, सो वी विल यूज हियर थर्ड इक्वेशन. ठीक है, हियर वी विल राइट यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, तो वी विल राइट द फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. नाउ वी विल पुट द वैल्यू v, it is 0, so it is a square minus 20 square equal to 2 into a into s is 50. Okay, here it will be minus 400 equal to 100a. तो क्या हो जाएगा, minus 400 by 100 equal to a. This cancel 4 times, so a equal to minus 4 meter per second square. ठीक है, ये आ गया. नाउ वी विल फाइंड सिंस f इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इज गिवन 1 एंड एक्सेलरेशन इज -4, सो इट्स आंसर विल बी व्हाट, -4 न्यूटन. तो यहाँ पे हम लोग नीचे लिख देंगे नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन shows the force of friction. Force of friction is opposing the motion of the ball. Means force of friction क्या कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज 4 न्यूटन. ठीक है,
In question number 7, it is given a 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 2000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 4000 Newton and track offers a frictional force of 5000 Newton, then calculate first net accelerating force, second acceleration of the train, and force of wagon 1 on wagon 2. This one is in some books, that is old book that was given. Okay, so we will write the answers like that. So first of all, here force exerted by engine, we will write here force exerted by the engine. Okay, so what it will be? Force exerted by the engine is what? 40,000. Okay, 40,000 Newton. See here, that force exerted by it is not 4,000, 40,000. Okay, then after frictional force, here we will write frictional force जो लग रहा है, that is how much? That is 5,000 Newton. That is exerted by the track. Therefore, for first condition we will write therefore net accelerating force, net accelerating force. तो इट विल भी क्या करेंगे, फोर्स इतना फोर्स लग रहा था और इतना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, तो माइनस कर देंगे. इट विल बी 40,000 माइनस 5,000, दैट इज इक्वल टू 35,000 न्यूटन. मीन्स दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग. ठीक है. इन सेकेंड पार्ट, that is B number, here A number, that acceleration of the train, for that what we will do? See here, you will write here mass of train. क्या हो जाएगा टोटल मास? दैट एक एक वैगन जो है 5 वैगन है 2000 kg का. ठीक है, तो इसको 5 से इंटू कर देते हैं. और इसमें इंजन भी है, तो इंजन का मास कितना दिया हुआ है? दैट इज 8,000. Here we will add here 8,000. Total value will be what? That is 5 to the 10 और 8. Total हो गया कितना? 18,000 kg. 18,000 kg. This is the mass of the train. ठीक है. Now we will find that since acceleration equal to क्या हो जाएगा? Force by mass. Means F equal to m है, तो mass ये हो जाएगा. Force is what? 35,000 and here is 18,000. क्या चीज़ में आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 000 कैंसिल होगा, तो इट विल बी व्हेन वी विल डिवाइड वी विल गेट 18 1 जा 18, 18 9 जा 9, इट विल बी इतना 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. दिस इज फॉर सेकेंड पार्ट. एंड थर्ड पार्ट व्हाट वी विल डू? सी हियर व्हाट वी विल डू फॉर द C number. In C number, that it is given कि that the force of wagon 1 on wagon 2. So what we will do? Here we will write force of wagon 1 on wagon, VAGON wagon. Okay, वैगन 2. तो इसको हम लोग लिखेंगे दैट इज 1 2 पे कितना लगाएगा, है ना. तो यहाँ पे लिख देंगे मास ऑफ 4 वैगन्स में से क्या कर देंगे भाई हम लोग, जो मतलब उसके कितना उसके पीछे है, 1 के पीछे 4 वैगन्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ 4 वैगन्स और इसमें फोर्स पूछ रहा है तो एक्सेलरेशन डाल देंगे. एक्सेलरेशन, तो मास ऑफ 4 वैगन कितना हो जाएगा? 2 इंटू दैट इज दैट एक्चुअली 4 इंटू 2000. ठीक है, इंटू एक्सेलरेशन इज 1.94. इट विल बी 8000 इंटू 1.94, तो ये आ जाएगा 15520 न्यूटन. ठीक है, दिस इज द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8. An automobile vehicle has a mass of 1500 kg
what must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration 1.7 meter per second square. So what we'll do here, mass is given, so mass equal to, we will write 1500 kg, acceleration is given negative 1.7 meter per second square. नेगेटिव एक्सेलरेशन इज गिवन मीन्स देयर द रिटार्डेशन, क्योंकि बॉल जो है ऑटोमोबाइल जो है क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है. सो वी हैव टू फाइंड हियर व्हाट, वी हैव टू फाइंड द फोर्स. सिंपली वी विल राइट सिंस F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इज गिवन 1500 kg, एक्सेलरेशन इज गिवन -1.7. ठीक है, इट विल कम इन, सो इट विल बी नेगेटिव, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 225 हियर 20 एंड एक डिजिट का डेसिमल यहाँ पे न्यूटन, मतलब -2550 दिस वैल्यू. तो यहाँ पे हम लोग बता देंगे कि नेगेटिव साइन शोज लास्ट में, नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, दैट द फोर्स is in a direction opposite to the motion of a vehicle or of the vehicle. ओके, दिस विल बी द आंसर. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ अ वेलोसिटी v. तो सिंपल सा चीज़ है ये कि मोमेंटम आपको बताना है, मास m है, वेलोसिटी भी है, तो दैट एनीबॉडी कैन गिव द आंसर. व्हाट विल बी द आंसर, डेफिनेटली इट विल बी द मास इनटू वेलोसिटी, सो दैट ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. ये मैं बुक पे इसलिए कर रहा हूँ कि दैट वेरी शॉर्ट वन. ठीक है, यूजिंग अ हॉरिजेंटल फोर्स 200 न्यूटन वी टेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस द फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी. व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल एक्सर्ट द कैबिनेट. मतलब इस पे, ये सरफेस है, इस पे एक इसको मूव करना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फोर्स लगेगा, द वुडन कैबिनेट जो होगा टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो नेट कैबिनेट जो फोर्स होगा दैट मस्ट बी 0. सो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों मिलके क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो हो जाएगा दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, वी कैन राइट दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज इक्वल टू दैट -200 न्यूटन. ये हम लोग दिखाएंगे. क्यों दिखाएंगे, क्योंकि ये टोटल जस्ट लाइक मैंने क्या कहा, दैट अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों मिलके क्या होना चाहिए, 0. तो जो आपको फाइंड करना हो फ्रिक्शनल फोर्स 0 -200 न्यूटन, तो इट विल बी -200. तो नेगेटिव साइन हम लोग बता देंगे, नेगेटिव साइन शोज द व्हाट, दैट अपोजेज द मोशन ऑफ अ बॉडी. सो इसका फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा दैट मस्ट बी द कैबिनेट का, दैट विल बी इक्वल टू 200 न्यूटन. See the question number 11. Two objects, each of mass 1.5 kg, are moving in a same straight line but in opposite direction. मतलब कि दो बॉल है, दोनों क्या है कि दैट हैविंग द सेम मास. ठीक है, इसको ले लेते हैं m1, इसको ले लेते हैं m2. इसका मास दिया हुआ 1.5 kg, इट्स मास इज ऑल्सो गिवन 1.5 kg. ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर मूव कर रहा है, एक इधर की तरफ मूव कर रहा है, विद द सेम स्पीड दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड. जब हम लोग दोनों का स्पीड को दिखाएंगे डायरेक्शन, तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन यूज़ कर लेंगे. ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, दोनों जब मूव कर रहा है तो आफ्टर दिस क्या होगा, ये दैट दे कोलाइड, एक दूसरे से कोलाइड हो जा रहा है. ठीक है, कोलाइड होने पे क्या हो रहा है कि दैट दे स्टिक टुगेदर, ये दोनों स्टिक हो गया, m1 और m2 दोनों चिपक गया. ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी, कंबाइन ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा, आइदर विल दिस मूव साइड, दिस विल मूव टू दिस साइड, और दैट विल बी इन रेस्ट. तो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल फाइंड द टोटल मोमेंटम, टोटल momentum before
collision. Okay, तो it will be m1 u1, जस्ट लाइक इसको u1 ले लिए, इसको u2 ले लिए, ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2. ओके, तो क्या हो जाएगा, m1 यहाँ पे हो गया आपका कितना 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू 2.5. एज आई टोल्ड हियर द डायरेक्शन इज अपोजिट, सो वी विल टेक एनी वन स्पीड नेगेटिव, आइदर दिस वन और दिस वन, इन दोनों में से किसी एक का ले लेंगे. तो व्हाट विल बी द वैल्यू, नेगेटिव है तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 2.5. हियर नो नीड टू मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों सेम वैल्यू है, सिर्फ अपोजिट साइन है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन 0 हो जाएगा. इसके बाद हम लोग निकालेंगे टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन में क्या दिखाएंगे कि हम यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट जो है मतलब दे जस्ट स्टिक टुगेदर. तो यहाँ पे हो जाएगा m1 प्लस m2 और ले लेते हैं इसके वेलोसिटी को v. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5 इंटू v, ये हो गया 3v. अब यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, T1. तो ये वैल्यू जो है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, दैट विल बी सेम. सो हियर व्हाट इट विल बी, 3v इक्वल टू 0. सो वी कैन राइट v इक्वल टू 0/3, दैट इज इक्वल टू 0. सो after when the body will stick to, what will be the velocity of the combined object, definitely that will come in rest position, that will be 0. Question number 13. A hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is stuck by a hockey stick so as to return it along its original path. Means एक ball, hockey ball है, that is stuck by a hockey stick. इसका mass दिया हुआ 200 ग्राम. so we will write here that mass m, that is equal to 200 gram, that is equal to, we will convert into kg, 200 by 1000, it will cancel. Here we will write kg, that is equal to 1/5 kg, or we may write in decimal also. Then after here it is moving with what, 10 meter per second. मतलब हम लोग यहाँ इनिशियल वेलोसिटी डाल देंगे 10 meter per second, and when it is stuck by the hockey stick, it return on its original path with a velocity of 5 meter per second. मतलब 5 meter per second से वो रिटर्न होता है. इसका दूसरा स्पीड हम लोग लिख देंगे 5 meter per second, and we will put the negative sign. Why? Because of that the side, मतलब कि अगर मान लो बॉल इधर से इधर जा रहा है तो हॉकी स्टिक से जब उसको स्टिक किया जाता है, मतलब उसको मारा जाता है, तो दैट इट रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पाथ, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. सो वी विल राइट हियर नेगेटिव साइन. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे चेंज ऑफ मोमेंटम. तो चेंज ऑफ मोमेंटम जाने में और आने में क्या हुआ, तो दैट वी विल राइट हियर m v माइनस m u. चेंज इन मोमेंटम, मास को कॉमन ले लेते हैं, दैट v माइनस u. ठीक है, तो मास कितना है हमारा 1/5 डाल देंगे. वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 5 है, माइनस में डालेंगे. ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है. एंड हियर इज 10, सो इट विल बी 1/5 इंटू -15. ठीक है, 5 3 जा 15, तो इट इज -3 kg मीटर पर सेकेंड. वी विल राइट द यूनिट. ठीक है, एंड नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि दैट ये जो डायरेक्शन जो चेंज हुआ उसके कारण दैट द वैल्यू इज -3 kg मीटर पर सेकेंड. Here that asks the calculate the change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied. So this is our answer, that is 3 kg meter per second, that is change in momentum minus. ठीक है. Now see question number 14. A bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a wooden block, comes to rest in 0.03 second. कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है. ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स
exerted by the wooden block on the bullet. So what is actually here, that see, suppose that this is the block of wood और here बुलेट में एक सिंपल सा एक ऐसा डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, एंड इट इंटर्स, ये इसके अंदर जा रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है, मान लो कि ये यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, इट्स मास इज गिवन, तो पहले हम लोग मास के बारे में लिख देते हैं, दैट इज 10 ग्राम, इसको कन्वर्ट कर लेंगे एसआई यूनिट में, दैट इज केजी हो जाता है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो दैट इज इक्वल टू 0.01 केजी मास हो गया, ठीक है। मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी यहाँ दिया हुआ 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये 150 मीटर पर सेकेंड इसको, इस वुडन ब्लॉक को हिट कर रहा है, देन यहाँ तक मान लो आ गया या यहाँ तक जो भी है, तो सपोज दैट ये यहाँ तक पहुँचा, तो ये यहाँ पे क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। सो वी विल राइट हियर फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है। टाइम इज गिवन, टाइम के बारे में मेंशन कर देंगे, दैट इज 0.03 सेकेंड, ठीक है, टाइम मेंशन कर दिए। तो हम लोग को फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब एस फाइंड करना है हम लोगों को, तो एस इक्वल टू व्हाट, और क्या फाइंड करना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक, ठीक है, दैट इज व्हाट। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है, तो सिंस का सिंबल डालेंगे, दैट ए इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज 150 एंड टाइम इज 0.03, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 150 बाई 3, इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे ये 100 आ जाएगा, 3 5 जब 5 ये आ गया, माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को फोर्स निकालना है और डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो ये हम लोग बाद में यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग को बोला गया या डायरेक्टली आप पहले निकाल सकते हो फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे यूजिंग, क्योंकि पहले क्या लिखा हुआ कि दैट कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, उसके पहले लिखा हुआ द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका यूज करते हैं हम लोग, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हमने यूज़ किया, तो यहाँ पे दैट वी का वैल्यू 0 स्क्वायर माइनस हियर इज व्हाट 150 का स्क्वायर कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 5000 इंटू एस, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये तो 0 है, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 5 00 हो जाएगा, 150 इंटू 150, तो बेटर है 15 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 0 डाल दीजिए, यहाँ से ये आ जाएगा 5 2 जा 10, नेगेटिव 10 और 3 0 लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एस, दिस कैंसिल हो जाएगा, तो और क्या कैंसिल होगा, दैट नेगेटिव साइन कैंसिल हो, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 225, नीचे में 2 0 है, सो दैट विल बी 2 डिजिट के बाद डेसिमल डाल देंगे, तो डिस्टेंस हम लोग को कितना आ गया 2.25 मीटर, ठीक है। अब हम लोग फोर्स निकाल लेंगे, सिंस F इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज गिवन 0.01 और एक्सेलरेशन है माइनस 5000, व्हेन वी मल्टीप्लाई वी विल गेट व्हाट, दैट 5000 लिख देंगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पे डाल देंगे नेगेटिव, ठीक है, मतलब कितना हो गया माइनस 50 न्यूटन, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मीन्स फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक, यहाँ पे देयरफॉर force exerted by the wooden block that is equal to 50 न्यूटन, ओके। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि दैट ये इधर जा रहा है, तो नेगेटिव साइन मतलब दैट ये जो ब्लॉक ऑफ वुड है दैट अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस बुलेट, सो दैट इज 50 न्यूटन, ठीक है, like that we will write that is the 50 Newton, ठीक। Question number 15. An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. Calculate total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of combined object, ठीक है। तो here mass is given, that here mass that we will take m1 because there are the two objects there, that the wooden block is there, it is given 1 kg, okay,
it's moving with a speed. Here we will take u1 10 meter per second. Okay, mass of the, see here, wooden block, it is given 5 kg, so we will take m2, and it what they move off together in the same straight line. Okay, and then after what is see here that स्टेशनरी वुडन, मतलब यहाँ पे ये क्या है, अभी रेस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, बिफोर इम्पैक्ट। ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, तो ये हो जाएगा दैट इज m1 u1 प्लस हियर वी विल टेक m2 u2 m2 u2. Okay, so that will be equal to mass of 1 into that is u1 10 plus mass of second one that is 5 into 0, that it will be 10 kg meter per second. After that we will write total momentum just after impact. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगा, दैट दोनों क्या हो रहा है कि दैट रिमेन्स द सेम, क्योंकि टोटल बिफोर यहाँ पे टोटल मोमेंटम रिमेन्स क्या हो जाएगा, सेम रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जस्ट आफ्टर लिख देंगे 10 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों तो सेम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि दैट जस्ट, यहाँ पे क्या कह रहा है कि टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। इसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी विद द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, तो हम लोग कैलकुलेट करना है वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि जस्ट बिफोर और आफ्टर मोमेंटम सेम होता है, तो यहाँ पे अब ये जो वैल्यू है हम लोग यहाँ दिखाएंगे कि लेट कर लेते हैं, लेट भी बी द वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। कंबाइंड ऑब्जेक्ट मतलब दोनों जब कंबाइंड हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, दैट m1 प्लस m2 इंटू वी लिख देंगे, एंड हियर दैट टोटल मोमेंटम इसका दिखा देंगे कितना हो जा रहा है यहाँ, दैट इज इक्वल टू 10, ये मोमेंटम इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका दोनों को मास को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 5 इंटू वी इक्वल टू 10, तो यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा 10/6। ठीक है, 10/6, तो वी विल डिवाइड इट, तो ये आ जाएगा 1.6 आ जाएगा, मतलब 7 मीटर पर सेकेंड। आप यहाँ कैंसिल करके भी कर सकते हो, दैट इज, सो दैट इज द what velocity of combined object, that will be 1.66 meter per second. Now we will see here the question number 16. See here what is given, an object of mass 100 kg. So how we will solve here, see, in this one it is given mass is given 100 kg. Okay, and here a speed moving, see here that given a speed 5 meter per second and that's फाइनल स्पीड दैट 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मेंशन कर देंगे हम लोग। टाइम इज ऑल्सो मेंशन, यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है तो टी लिख देंगे 6 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑन द ऑब्जेक्ट, तो पहले यहाँ इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं, इनिशियल मोमेंटम इसको P1 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, दैट इज mu, वैल्यू पुट कर देंगे 100 इंटू यू, दैट इज कितना दिया हुआ 5, तो यहाँ पे 5 डाल देंगे, क्या हो जाएगा, दैट इज 500 kg मीटर पर सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम हो गया, फाइनल मोमेंटम इसको भी फटाक से लिख लेंगे P2, दैट इज mv, तो मास है सेम 100, वेलोसिटी इज 8, तो ये हो जाएगा 800 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू आ गया हम लोग का, दैट दिस वन एंड दैट वन। अब क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट द इनिशियल एंड द फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट
और इसमें और भी फाइंड करना है, दैट इज द मैग्नीट्यूड. ओके, दैट हियर वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द what, find the this one also. Here we have to write that find the magnitude also, that I have not mentioned. Momentum is given here, that is final momentum of the object. Here also find the magnitude magnitude of the force exerted on the ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेंगे फोर्स को. तो फोर्स क्या हो जाता है हमारा, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. यहाँ पे दिखा देंगे सिंस एफ दैट इज इक्वल टू क्या, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम दिखाएंगे, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर देंगे, एंड टाइम इज गिवन 6 सेकेंड. तो वी विल राइट हियर 6. इट इज हियर 300 बाई 6, कैंसिल कर देंगे, इट इज 5050. सो दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन. दैट इज द सॉल्यूशन. This is the question number 17. Akhtar, Kiran and Rahul were riding a motor car that was moving with a high velocity on an expressway when an insect hits the windshield and got stuck on the windscreen. Akhtar and Kiran started pondering over the situation. Kiran started giving suggestion. अपना suggestion दे रहा है कि that the insect suffered a greater change in momentum as compared to the change in momentum of the motor car, because the change in velocity of the insect was much more than that of motor car. अख्तर ने बताया कि that the since the motor car was moving with a large velocity, it exerted a large force on the insect. और ये सबसे हटकर, ठीक है, राहुल ने बताया कि दैट पुटिंग अनदर इंटायर न्यू एक्सप्लेनेशन सेड दैट द बोथ मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंसेस द सेम फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम जो होगा, ठीक है, दैट इज द सेम चेंज इन मोमेंटम. तो कह रहे कमेंट ऑन दिस सजेशन. ठीक है, सो व्हाट विल बी द आंसर, जस्ट यू सी हियर दैट व्हाट वी विल राइट. सी सजेशन मेड बाय द किरण दैट द के इन इटसेल्फ कि उसने बताया कि दैट इंसेक्ट जो है सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू दैट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार इज टोटली रॉन्ग वन. ठीक है, अनदर वन गिवन बाय द अख्तर दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन मेड बाय दैट Rahul, that is correct one. So on the collision of insect with motor car, both experiences the same force. Okay, as simply we can say as action and reaction are always equal and opposite. Further change in their momenta are also in the same is the same. ठीक है, ओनली द साइन क्या होगा वो चेंज होता है. ठीक है, एंड द अपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो सिंपली वी कैन से दैट द मैग्नीट्यूड चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच will be that the same, each will be the same here. So that the suggestion made by that Rahul, that is correct one. Okay, question number 18. How much momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter? Take downward acceleration 10 meter per second square. How we will do the solution? Dumbbell like this, ठीक है, ये इस टाइप से होता है ना, and it falls to the surface. ठीक है, यहाँ पे गिर रहा है. Here mass is given, so we will write here mass. It is given 10 kg. Okay, its height that is given 80 centimeter, and definitely that is at rest. So यहाँ पे initial velocity इसका हम लोग ले लेंगे 0. That distance s या h कुछ भी यूज करेंगे. That 80 centimeter is here. Will convert into meter. It will be 80 by 100 मीटर, मतलब 0.8 मीटर. ठीक है, एक्सेलरेशन जो है दैट डाउनवर्ड ही इट इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हियर वी विल राइट ए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी हम लोग ले लिए, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे पता नहीं किस स्पीड से वो हिट करेगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वेलोसिटी. ठीक है, तो हियर वी विल राइट यूजिंग v square minus u square that is equal to 2as. we will put the value v square equal to क्या हो जाएगा यहाँ पे u square plus 2as. तो v square that is u is 0
plus 2 into acceleration is given 10 and distance that is 0.8. ठीक है, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, ये हो गया 0 प्लस 8 टू जा 16, एक जीरो के बाद डेसिमल, और वी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो वी का वैल्यू हम लोगों के पास कितना आ गया 4, अंडर रूट 16 दैट इज 4. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द मोमेंटम जो ट्रांसफर हो रहा है या मोमेंटम ट्रांसफर, द मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द फ्लोर, क्योंकि जिस वेलोसिटी से हिट करेगा वही ट्रांसफर करेगा, दैट इज इक्वल टू एम भी, मास 10 kg है एंड वेलोसिटी इज हियर, वी विल मस्ट राइट द यूनिट आल्सो. ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4, यूनिट हो गया kg मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी इक्वल टू 40 kg मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स दैट वी हैव टू फाइंड द हियर कि कितना ट्रांसफर हो रहा है, तो दैट विल बी momentum transfer to the ground, that is 40 kg meter per second.